A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your accounts teacher. Today we'll be solving the part 3 of accounts paper that was held on 13th of March 2023. We'll only be taking a few questions of this again since the paper was lengthy. Obviously, you all know that. So, उसी के according we'll only be taking a few questions. The first question we'll be taking of shares, both the parts of shares we will be taking. Then question number 7 and 8. Question number 10 says that NH Limited with an authorized capital of this much divided into equity shares of this much with ₹10 each issued this. Now हमें किससे मतलब है, हमें issued capital से ही मतलब है. Until you have to make balance sheet जिसमें सिर्फ journal entries ही पूछी गई हैं, तो हमें सिर्फ issued capital से मतलब है. That was issued at a to the public at a premium of ₹2 per share. मतलब अगर यहाँ पर ₹5 का application है including premium, तो ₹2 is premium and ₹3 is application. Then ₹3 on allotment and ₹4 on first and final call. तो ये पूरा ₹10 हो गया. 3, 3 और 4. Okay. Next part says that the subscription was at par, means it was not जितना बोला जितना issued था उतना ही मिला. The share money was received in full with the exception कि 4,000 shares एक person ने held किए थे जिस पर he didn't give the allotment money and 6,000 shares including Ravi's share उस पे one person has not given the call money. Okay, then the above 6,000 shares ये जो थे they were forfeited. 5,000 of this were reissued including the shares that had been allotted to Ravi, and they were reissued at a premium at ₹8 per share as fully paid up. So you are required to pass journal entries about it. ठीक है, तो we will start with this first question. The very first part of this is that you need to know is कि सबसे पहले आपने क्या रिसीव किया. आपने रिसीव किए 50,000 50,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच. 3 in the sense application. तो टोटल आपने कितना रिसीव किया है 50,000 into 5. तो we will start it as here. It will be written as bank. It will be written as सबसे पहले हम लोगों ने क्या रिसीव किया है बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, टू शेयर या अगर इक्विटी शेयर्स उसमें लिखा हुआ है तो इट हैज टू बी रिटन इक्विटी शेयर है ना, इट हैज टू बी रिटन एज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन account. How much money will be received? It will be received as 5,000 shares. 50,000 shares you will write 50,000 into ₹5 जो पूरा क्या था इसमें साथ में प्रीमियम था. ठीक है, तो it will be written as 2.5 लाख 2,50,000 here and 2,50,000 here. Then this money ये जितना भी था it has to be given, it has to be transferred. किस में ट्रांसफर होगा? This equity, it will be written as equity share application account debit. Okay, to what has happened? Okay, so equity share application account debit to what? It will be to share capital जिसमें हमेशा उसकी face value जाती है, और दूसरा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके, ये जर्नल एंट्रीज तो आपको पता ही होंगी. जिसमें कितना जाएगा 50,000 शेयर्स का इंटू 5 वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड, वो पूरा 2.5 लाख रुपए यहाँ पर लिखोगे. और उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 50,000 इंटू हाउ मच इंटू ₹3. 50,000 इंटू ₹2. तो ₹3 मीन्स 1.5 लाख रुपए यहाँ पर जाएगा और 1 लाख रुपीज यहाँ पर जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट सेज कि एक पर्सन था. इसके बाद हमने क्या किया, एक पर्सन था जिसने क्या किया, उसने 4,000 रुपए अलॉटमेंट मनी के नहीं पे किए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे. सबसे पहले वी विल ड्यू अलॉटमेंट मनी. तो हेयर after this you will write this will be equity
share allotment account debit to equity share capital account. ओके बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसीलिए आई एम राइटिंग सो हॉरिबली हियर. तो इट विल बी कितना, 3 रुपए है इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट का मनी, तो इट विल बी 1.5 लाख रुपए एज इट इज. फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, शेयर. देखो हम लोग वेन एवर यू विल ड्यू इट, यू विल ड्यू इट विथ होल अमाउंट, बस नरेशन हैज टू बी रिटन. अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो श्योरली आपके मार्क्स पर एंट्री डिडक्ट होते हैं. ठीक है. फिर दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी, इट विल बी रिसीव्ड. तो जितना पैसा रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं रिसीव हुआ है विल गो इन कॉल्स in areas account debit to equity share allotment account. तो सबसे पहले यहाँ पर साफ साफ चीज दी हुई है कि एक पर्सन था जिसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी ऑन 4000 शेयर्स वर नॉट रिसीव्ड. ओके, और अलॉटमेंट मनी का पैसा कितना है, इट इज 3 रुपीज जो आपके नहीं रिसीव हुए. तो 4000 shares into ₹3 means you have not received a total. अगर 4000 shares of ₹3 means you have not received a total of 12,000 in this. तो कितने रिसीव कर लिए, 50,000 में से 4,000 नहीं रिसीव किए, तो 46,000 shares into ₹3 you have received. तो how much it will be? It will be 1,38,000 shares. ठीक है. तो 1.5 लाख में से आपने कितना रिसीव कर लिया, 1,38,000 shares you have received rupees and 12,000 you have not received. और ये पूरा चला जाएगा यहाँ पर as 1,50,000. Okay, now after that you will make first equity share first and final call अकाउंट डेबिट, जितना उसका पैसा है, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप ड्यू करोगे उसको, और कितने अमाउंट से ड्यू करोगे, हाउ मच वाज अमाउंट, इट वाज 4000. तो अगेन इट विल बी रिटन एज 50,000 शेयर्स इनटू ₹4. हाउ मच इट विल बी, इट विल बी ₹2 लाख. ठीक है, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 1 2 3, तो दिस इज 2 लाख. अब when you will receive it, तो इसमें क्या कहा गया है, इंक्लूडिंग दिस 4,000 रुपीज जो यहाँ पर आपने नहीं रिसीव किए हैं ये वाले, प्लस इसमें 2,000 रुपए और, मतलब कि टोटल 6,000 यू हैव नॉट रिसीव्ड. और 6,000 पे आपने क्या नहीं रिसीव किया है, ये कितना था, 50,000 इंटू 4, तो यहाँ पर 6,000 पर यू हैव नॉट रिसीव्ड this 4,000. this will be 24,000 in total आपने नहीं रिसीव किया है. तो कितना रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट, देन अगेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है. अभी हम सिर्फ फर्स्ट कॉल ही लिख दे रहे हैं इसमें, क्योंकि देयर इज नो स्पेस, नहीं तो ये क्वेश्चन 4 पन्ने ले लेगा. ठीक है. फिर कितना, 2 लाख रुपए यहाँ पर था, दिस विल बी 2 लाख रुपीज. इस 2 लाख में से व्हाट यू हैव रिसीव्ड, इतना पैसा नहीं रिसीव किया है, 24,000 रुपए. तो यू हैव हाउ मच यू हैव रिसीव्ड, यू हैव रिसीव्ड 1,76,000. 1,76,000 कैसे आया, 6,000 ये हटाओ, तो 50,000 में से 6,000 गया, 44,000 आपके शेयर्स इनटू ₹4 ईच. द फर्स्ट कॉल का अमाउंट ये आपने रिसीव किया, कॉल्स इन एरियर्स में क्या गया, अगेन 6,000 इंटू 4 24,000, ये वाले रुपए आपने नहीं रिसीव किए. ओके, नाउ यू विल forfeit these shares. बस इसमें एक ही चीज अच्छी दी हुई है कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन वाला इसके साथ नहीं दिया है. ठीक है, कहने को जो पेपर थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए थे, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रियायत बढ़ती गई है अगर आप उस चीज को नोटिस करो तो. कि पेपर, yes, it was undoubtedly it was difficult, but it was not that level of ganda paper. It was a good paper.
Okay, so now you will reissue this when you, sorry, first you will forfeit this. तो सबसे पहले क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले हम जनरल एंट्री कर दें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स में वो पैसा जाता है जितना आपने यहाँ पर डेबिट किया है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में देखो इन टोटल हाउ मच मनी यू आर टेकिंग। आप ये जो अबव 6000 शेयर से ये पूरे के पूरे शेयर 6000 शेयर्स आप लोग फोरफीट कर रहे हो। तो सबसे पहले यू विल राइट 6000 इंटू 10 रुपए का था ये, 10 रुपए की वैल्यू, तो दिस विल बी 60,000। यस, इट विल बी ₹60,000। पूरा शेयर कैपिटल में हमेशा उसकी फेस वैल्यू जाती है। फिर कॉल्स इन एरियर्स में जितना पैसा आप रिसीव कर चुके हो, 12,000 ये वाले हो गए, एक 12,000 ये हो गया और एक 24,000 ये हो गया। तो ऑल इन ऑल दिस इज 36,000 जो आपको नहीं मिला। अब इस पे कितना मिल गया डिफरेंस निकालो, दैट इज 24,000। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, देखो किस अकॉर्डिंग हम लोग को कॉल मनी रिसीव होना था, सॉरी जितना भी पैसा था हमें किस अकॉर्डिंग रिसीव होना था, 5, 3 और 4 के अकॉर्डिंग। दिस इज 5, 3, 4 और इसमें क्या था, इसमें 2 रुपए आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम थे, मतलब 3 रुपए आपका एप्लीकेशन मनी था मेनली। ठीक है, तो इसको 3-3 करके अगर हम लोग ले तो ये मेरे टोटल 10 रुपए हो गए। ये वाले प्रीमियम का अमाउंट हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है, वो शेयर कैपिटल में नहीं जाता। अब ये 24,000 रुपए कहां से आए, तो हाउ इट विल बी टेकन। 24,000 में सबसे पहले 2 थे, पहला आपने 4,000 रुपए जिसमें उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया हमको, और अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। तो कितना उसने पे किया हमें, उसने हमें पे किया 4,000 पर 3 रुपए। ठीक है, तो 4,000 पर उसने हमको 3 रुपए पे किए, 12,000 रुपए ये हो गए। दूसरा उसने क्या किया, जो बचे हुए 2,000 थे, जो अभी देखो शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है, ऑब्वियसली वो पैसा जाता है जो आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, जो शेयर आप जब्त करोगे वो इसमें जाएगा। 4,000 पे 3 रुपए जो आपके नहीं जो आपने रिसीव कर लिए वो जाएंगे, ये एप्लीकेशन मनी। और एक्स्ट्रा 2,000 पर, ठीक है, एक्स्ट्रा 2,000 जो आपके शेयर थे दैट वाज 4,000, उस पर कितना पैसा आप रिसीव कर चुके हो, अलॉटमेंट पहला वाला और ये वाला, तो दिस विल बी 6। तो अगेन एक 4,000 शेयर इंटू 3 एंड दिस विल बी द सेकेंड वन, दैट इज 2,000 शेयर्स इंटू ₹6। ठीक, तो दिस इज द होल ऑफ 12,000 इसका गया, 12,000 इसका गया, हेंस दिस इज 24,000। अगर आपको इतना दिमाग नहीं भी लगाना है तो आप उसकी बैलेंसिंग कर सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 24,000 कैसे आए। ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट हैज टू बी डन इज नेक्स्ट यू विल री इशू दिस। ये जो फोरफीटेड शेयर्स थे बाय द कंपनी, अब इसमें से 6,000 शेयर्स में से कितने री इशू हुए, 5,000 एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। ओके, तो हाउ मच यू हैव रिसीव्ड, 40,000 यू हैव रिसीव्ड ऑन दिस एज पार्ट ऑफ री इशू। तो अब हम लोग अपनी री इशू की एंट्री करेंगे। अगेन दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना डिस्काउंट आप दे रहे हो वो जाता है शेयर फॉर फीचर से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और उसके बाद जो बचा हुआ है दैट विल गो विद बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हाउ मच इट विल बी, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट थिंग विल बी, सबसे पहले 5,000 शेयर थे, 5,000 यू विल टेक मल्टीप्लाइड बाय ₹10, हमेशा उसकी फेस वैल्यू जाएगी 5,000 एज फुली पेड अप मीन्स यू विल टेक द होल ऑफ 10,000, 10 रुपए, तो 50,000 ये हो गया। बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 5,000 इंटू ₹8, दिस इज 40,000 इट विल गो, एंड शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा, यही 5,000 इंटू ₹2। ओके, तो दिस विल बी हाउ मच इट विल बी, 5,000 का 40,000 ये गया तो बचा हुआ 10,000
will go here. Then the last entry will be, ये वाला हम यहीं पर ही फर्स्ट वाले के साथ पास ही कर दे रहे हैं क्योंकि there is no space left, तो I will do it here only, यहाँ पे. Okay, तो नेक्स्ट आफ्टर दिस द फर्स्ट आफ्टर दिस ये वाली एंट्री के बाद नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल रिजर्व. अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? दिस विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि what will be mentioned in capital reserve, जितना प्रॉफिट बचता है आपका री इशू में. ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में उस अकॉर्डिंग कितना जाएगा? दैट इज द प्रॉफिट ऑन 6000 शेयर्स. 6000 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना था? 6000 शेयर्स पर प्रॉफिट था ऑफ ₹24,000. दिस यू नो. उसके बाद इसमें से प्रॉफिट ऑन 5000 शेयर्स. 5000 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना था? हाउ यू विल कैलकुलेट दिस? इट विल बी कैलकुलेटेड एज, रुको आई विल रब दिस होल. इट विल बी कैलकुलेटेड एज 5000 शेयर्स पर आपको कितना चाहिए? 24,000 आपका प्रॉफिट. 24,000 मीन्स इतना पैसा आपने फोरफीट किया ना, ये वाला पैसा. दिस इज दिस 24,000 आई एम टॉकिंग अबाउट. इस 24,000 में जो चाहिए उसको ऊपर लिख दो. दैट इज 5,000. ओके, दैट इज 5,000 पर हमको चाहिए तो 5,000 ऊपर लिख दो. जो नहीं चाहिए उसको नीचे लिख दो. तो द आंसर ऑफ दिस विल बी दी 3 विल बी डिडक्टेड 6,000 एंड दिस 6. तो इट विल बी 6 कितने बार में आता है इसके? बताओ, मैथ्स में हम बहुत कमजोर हैं. इट विल बी 4. ठीक है, तो 4 into 5 दिस विल बी 20,000. और इस 20,000 से जो आपका लॉस ऑन री इशू हुआ है, लॉस ऑन री इशू, इसी में से ही माइनस होगा. तो दैट विल बी 10,000. तो बचा हुआ 10,000 यू विल शो हेयर एज गॉन टू कैपिटल रिजर्व, जो आपका बैलेंस बचेगा. ये आपका पहला क्वेश्चन था शेयर का. काफी अच्छा क्वेश्चन था. ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट मीन्स द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 10th बी, जिसको बहुत रेयर ही चांसेस है कि किसी ने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन उन्होंने दिया है. मतलब हमको ही ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग गया था इसको सॉल्व करने के लिए. देखो इसमें क्या बोला गया है इसमें कि फर्स्ट पार्ट की द एमवी लिमिटेड के 2000 रजिस्टर्ड कैपिटल थी ऑफ ₹10 इक्विटी शेयर्स, जिसमें से कंपनी ने ऑफर किया इतना एज ₹5, ₹7, ₹8 एंड मीन्स दिस इज अ टोटल ऑफ ₹20 एंड द पब्लिक अप्लाइड फॉर दीज मेनी शेयर्स. कितने शेयर्स? 6700 शेयर्स. ओके, देन इसमें से 3 लोग थे, विमल, अभय. इन दोनों ने क्या किया, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट दिखा रहे हैं इसमें कि 1500, एक ने 1500 अप्लाई किया, जिसने इतना पैसा पे कर दिया ऑन एप्लीकेशन. 1500 इंटू ₹5, ठीक है, इज इक्वल टू 75 उसने पे कर दिया. पर उसको सिर्फ इतने ही रुपए अलॉट हुए, मतलब उसने कोई एक्सेस में पैसा ज्यादा नहीं पे किया, बट हाँ उसको जितना उसका एक्सेस एप्लीकेशन था सिर्फ उसने उतना मनी उसमें पे कर दिया. देन अभय, एक और महान प्राणी थे, इन्होंने क्या किया, 2000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जिनको सिर्फ अलॉट कितने हुए, 1000 शेयर्स अलॉट हुए. बट इसने क्या किया, इसने फुल अमाउंट पे कर दिया. ठीक है, नितिन was allotted 500 shares, he did not pay the allotment in call money. अब ये हो गया आपका, चला जाएगा calls in एरियर्स. बस इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा गणित नहीं लगाना है, क्योंकि इन्होंने जितना अप्लाई किया उतना ही इनको अलॉट हुआ. इन्होंने 500 अप्लाई किया, इन्होंने 500 इनको अलॉट हो गया. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर दे पेड एज एंड व्हेन ड्यू. ओके, सरप्लस मनी जो था इसका, किसका, विमल और अभय का, दैट वाज यूज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल. और उसके अलावा जितना भी मनी था दैट वाज रिफंडेड.
कंपनी ने नितिन के शेयर फोरफीट कर लिया आफ्टर फाइनल कॉल, बट इसमें कोई भी री इशू का पार्ट नहीं दिया हुआ है. तो द फर्स्ट थिंग वी विल टेक हियर इज सेकेंड पार्ट. वी विल टेक दिस, ये है ना जर्नल एंट्री. ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल टेक हियर इज द पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री. सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, 10th बी वाला क्वेश्चन. 10th बी, देखो सबसे पहले हाउ मच मनी हैज बीन रिसीव्ड 6700 शेयर्स पर ₹5. जो कौन से वाले थे, एप्लीकेशन वाले थे. एप्लीकेशन वाले ₹5. ठीक है, तो इट विल बी रिटन एज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बट इसमें फुल स्टेटमेंट लिखनी है. अगर आप ऐप लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. उन्होंने साफ साफ यही चीज बोली थी. क्या कहा था उन्होंने कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स यहां पर अलाउड नहीं है. ठीक है, तो ये हम 2 लाइनें जरा इसमें ड्रॉ कर दें. ओके, तो हाउ इट विल बी, दिस विल बी रिटन एज 6700 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, जो उसका पैसा था. यहाँ पर हम पहले उसका पेमेंट लिख दें. दिस इज 67,000 शेयर. 5, 7 और 8 रुपीज के अकॉर्डिंग इट इज टेकन. दिस इज 5, 7 और 8 के अकॉर्डिंग. तो नाउ वी आर डूइंग ₹5. ओके, तो it will be written here as 67,000 shares of ₹5 each. इसीलिए it will be 63500, 63500. ठीक, this will be done. After this, यही वाला जो शेयर एप्लीकेशन है will be transferred. Now this is excess money. एक्चुअल में कितना आग्ज था, सिर्फ 5000. तो जितनी भी वर्किंग है आपकी वो 5000 शेयर से ही होगी. तो दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसमें ऑब्वियसली फेस वैल्यू जाता है. ठीक है, पहले हम लोग लिखें यहाँ पर 63500. इसमें शेयर कैपिटल जाता है, मतलब 5000 शेयर इंटू ₹5 ईच. 5000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच. तो दिस विल बी ₹25,000 जो यहाँ जाएगा. बचा हुआ पैसा कहाँ यूज होगा, शेयर अलॉटमेंट में यूज होगा और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में होगा. शेयर अलॉटमेंट, दिस इज शेयर अलॉटमेंट, देन शेयर फर्स्ट कॉल, और जो उसके बाद कुछ भी बचा हुआ है तो दैट विल बी रिफंडेड. ओके, रिफंडेड टू, इट विल बी यूज्ड एज बैंक अकाउंट. अब देखो शेयर अलॉटमेंट में एक इंसान जिसको 1500 शेयर्स उसने मांगे थे, उसको कितने मिले हैं, 800 शेयर्स मिले. तो कितने नहीं मिले, 700. और उस पे इस 700 पे उसने कितना एक्सेस पेमेंट कर दिया था, 3500 का उसने एक्सेस पेमेंट कर दिया. ठीक है, ये 3500 प्लस उसके बाद एक और पर्सन था जिसने 2000 के लिए अप्लाई किया, उसको कितने मिले, उसको 1000 मिले. तो फर्स्ट थिंग, ये बाकी तो अलॉटमेंट, देखो एक चीज समझो कि उसने बाकी चीजें पे कर दी हैं. इसमें 1000 अगर उसको अलॉट हुए तो मतलब उसने 1000 पर पूरा का पूरा पैसा एक्सेस में कर दिया. तो हाउ इट विल बी डन, सबसे पहली चीज इसमें दी हुई है कि 35,000 पर हमने 700 शेयर पर ये हमने एक अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे. दूसरा 1000 पर, देखो 1000 पे तो उसने हमको एक्सेस में, ये पूरा का पूरा जो 1000 है ये हम पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें जो 1000, जो बचा हुआ 1000 था, उसमें उसने हमको पूरा का पूरा पैसा दे दिया है. तो इट विल बी रिटन एज, जो इसमें से 1000 शेयर्स पर, ये रहा मेरा एप्लीकेशन, ये रहा मेरा अलॉटमेंट. तो सबसे पहले जो 1000 उसको अलॉट हुए हैं उस पर इंटू 7 कर दो, दैट विल बी 7000 हियर. तो दिस विल बी रिटन एज 10,500. ओके, देन कम्स शेयर फर्स्ट कॉल. अब फर्स्ट कॉल वाला
इसका तो पैसा सारा एडजस्ट हो गया, 700 इंटू 5 थे, तो ये जितना भी एक्सेस उसने मनी हमको दिया था वो 3500 हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डाल दिए। दूसरे शेयर फर्स्ट कॉल में आए। अब शेयर फर्स्ट कॉल में जो पहला पर्सन था, पहला पर्सन यहाँ पे कौन था, विमल। विमल ने देखो हमें सिर्फ एक्सेस मनी इतना ही तो पेमेंट किया है उसने हमें, तो इसमें से जो ये वाले पैसे थे 800 शेयर्स, ये स्टार्ट एक्सेस बैलेंस जितना था 800 शेयर्स वाला जो सबसे पहले वाला था वो तो हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया, बचा 800, जो बचे 700 शेयर्स थे, 700 शेयर्स इंटू ₹5। ठीक है, ये जो मेरा पैसा था ये मेरा 3500 हमने ऑलरेडी उसका कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। इस इंसान का अब कोई भी एक्सेस मनी बाकी नहीं है। फिर दूसरी चीज क्या बोली गई, अभय एक पर्सन था जिसने क्या किया 40,000, मतलब उसने हमको फुल अमाउंट दे दी। उसे देना कितना चाहिए था, 1000 शेयर पर। भाई 1000 शेयर है, हमने चलो जो एक्सेस मनी आएगा वो हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे अटेंड कर लेंगे। तो इसमें हमने उसको 20 रुपीज तो आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब 20,000 मैं ऑलरेडी उसके रिसीव कर चुकी हूँ, हम इसको एडजस्ट कर देंगे। जो बचा हुआ इसमें 20,000 है वो मेरा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो यहां पर दिस 20,000 विल बी रिफंडेड, और यहां पर सिर्फ उसके 1000 शेयर पर जो उसके 7 रुपीज है हम उसको एडजस्ट कर देंगे, दैट विल बी शोन हियर एज रुपीज, 1 मिनट, 8 रुपए, 8 रुपीज है, ये 8 है ना, तो दिस विल बी रिटन हियर एज ₹8,000। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपको इतना पता चलेगा कि हमें इतना पैसा रिफंड करना है, टोटल बैलेंसिंग ये वाली हो गई। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू विल टेक शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करोगे कितने शेयर से, 5000 इंटू 7, तो दिस विल बी 35,000, yes it will be 35,000 shares, और it will be 2 share capital। ओके, देन जब आप इसको रिसीव करोगे, दिस विल बी शेयर अलॉटमेंट, देन आप whenever you will receive it, तो बाकी एडजस्टमेंट के बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स, उस इंसान ने जिसने हमें पैसा नहीं दिया है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं अलॉटमेंट ही होगा, दिस इज अलॉटमेंट। ओके, so this is share allotment account. How much? 35,000 you will not write. अब आप कितना लिखोगे, जो आप ऑलरेडी यहां पर रिसीव कर चुके हो उसको डिडक्ट करके पैसा लिखोगे, दैट इज नोन एज हाउ मच यू हैव रिसीव्ड हियर, 1050 ना, तो दिस विल बी रिटन एज यहाँ पर 24500। बैंक अकाउंट में यू विल राइट 21,000। वैसे बहुत रेयर चांसेस है किसी ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। और 3500 कहां से आए, एक इंसान जिसने हमको 500 शेयर पर क्या नहीं पे किया, देखो 1 पर्सन जिसने 500 शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों ही हमें नहीं पे किए, तो यहाँ पर यू आर स्टडिंग अबाउट अलॉटमेंट, तो उसने 7 रुपीज मतलब 500 पर 7 रुपीज ही हैज नॉट गिवन, तो दिस विल बी 3500 जो उसने हमें नहीं पे किया। फिर हम लोग करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू। आई एम अगेन सेइंग कि इसमें नरेशन लिखना इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट राइटिंग हियर क्योंकि हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वैसे इट हैज टू बी रिटन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ड्यू आप हमेशा पूरे अमाउंट से करते हो, दैट इज 5,000 इंटू 8 रुपए, तो दिस विल बी रिटन एज 40,000 हियर and 40,000 here. Then after this you will this will be written as, जब आप इसको रिसीव करोगे तो it will be बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
account. ठीक है, how much share first call 40,000 you have already 40,000 में से कितना 8,000 you have already received. तो here you will write it as 32,000 और ये 32,000 में से whatever amount calls in areas था कितना again 500 share 500 share into rupees 8 that was not received, तो it will be 4,000 shares calls in areas यहाँ पे लिखा जाएगा. ओके, calls in areas account जैसे हमने allotment की एंट्री की थी similarly 4,000 ये और what you have received 28,000 you have received. अब क्या कहा गया है कि इसी पर्सन के जो अमाउंट है वो हम लोग फोरफीट कर लेंगे, री इशू की कोई भी एंट्री उसमें नहीं दी हुई है. तो दिस विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture and two calls in areas. तो calls in areas when you will write, सबसे पहले 500 शेयर पर आपको जो रुपए रिसीव नहीं हुए हैं और 500 शेयर पर व्हाट यू हैव रिसीव्ड, आपको 500 शेयर पे 5 रुपए रिसीव हो गए तो इट विल बी रिटन एज 2500. 500 शेयर पे इंटू 7 एंड इंटू 8 मीन्स 15 रुपए ऑल इन ऑल आपको नहीं रिसीव हुए तो इट विल बी रिटन एज 7500 और 500 शेयर इंटू 10 द फेस वैल्यू विल बी रिटन एज 20 इंटू 20. ठीक है, विल बी रिटन एज 10,000. तो ये हो गया आपका पूरा शेयर वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ रियलाइजेशन. ओके, रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. वो थोड़ा सा इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें. रियलाइजेशन वाले में ट्रिकी था लेकिन इतना ज्यादा भी ट्रिकी नहीं था जितना उसमें वी हैव थॉट इट टू बी. ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट द फर्स्ट थिंग इट हैज बीन सेड हियर एज कि जो ओल्ड रेशियो था दिस वाज दिस मच बिटवीन टू पार्टनर्स एंड इट आस्क्स टू डिसॉल्व. जब वेन एवर दे विल डिसॉल्व इट तो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाते हैं जितने भी लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हो गया, सीता सन्स लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब कहाँ जाता है रियलाइजेशन के क्रेडिट में. और जितना ये असेट्स जितने भी होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये सब जाते हैं डेबिट में. प्रोविजन जाता है क्रेडिट में, बैंक अकाउंट हम लोग नहीं लिखते हैं. फिर देन ट्रेड क्रेडिटर्स दे हैड एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ दिस मच, जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ उतना बैलेंस लिखेंगे दैट इज रिटन हियर. देन डेटर्स these many debtors were proved bad. Sita took discount at stock at this much discount and realization expenses were this much. ठीक है, तो how it will be made, first thing you will write here all जितने भी आपके assets और liabilities. If you have that question paper with you, you can use that question paper जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन इज गिवन. द फर्स्ट थिंग यू विल राइट हियर, देखो जितने भी असेट्स प्लस एक्सपेंसेस होते हैं वो यहां पर आते हैं. जितनी भी लाइबिलिटीज प्लस इनकम्स होती हैं, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, असेट्स रियलाइज वाला जो होता है वो सब इस तरफ आता है. तो सबसे पहले जितने भी असेट्स हैं वो यहां पर लिखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग यू विल राइट हियर. लैंड एंड बिल्डिंग वाज हाउ मच, दिस वाज ऑफ 29,000. ओके, देन प्लांट एंड मशीनरी was of rupees 20,000. Then stock, डेटर्स की आप पूरी फेस वैल्यू लिखोगे तो स्टॉक was 3,000 and debtors was 26400. ठीक, and it will be written as 2. Everything will be written here as 2. And then here it is by. First thing is provisions. आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. प्रोविजन डेटर्स की फेस वैल्यू यहाँ लिखते हैं बुक वैल्यू, और प्रोविजन विल बी रिटन ऑन ऑपोजिट साइड as 400. Then by sundry creditors जितना भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है the whole you will write it as 40,000. Then
By bank overdraft, you will write whatever was given, 8,000. And then by Sita's son's loan. ठीक है, how much? 2,000. तो what we have done here is we have simply written जितने भी liabilities थे उसको हम लोग ने एक तरफ लिख दिया, जितने भी assets थे हमने उसको एक तरफ लिख दिया. Okay, now next part of this is trade creditors accepted plant and machinery at an agreed value of this much less. हमें इतना पता होना चाहिए, this is obviously written कि क्रेडिटर्स अगर कोई भी असेट लेकर जाते हैं हम उसकी वैल्यू को नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ उतना पैसा लिखेंगे जो उसने ले लिया है. क्रेडिटर्स यहाँ पर कितने थे? क्रेडिटर्स थे 40,000. ओके, 40,000 थे और they have taken plant and machinery at an agreed value of 10% less. 10% लेस मतलब अगर 20,000 का 10% निकालो 2,000 माइनस करो बचा 18,000. 18,000 they have already taken as part of asset जिसकी एंट्री हम नहीं करेंगे. जो वो नहीं लेकर के गए बचा 22,000 रुपए का बैलेंस, that was paid in cash. So here it will be written as to बैंक अकाउंट. हम एक्सपेंसेस लिखते हैं ना यहाँ पर, तो टू बैंक अकाउंट इट विल बी रिटन एज क्रेडिटर्स पेड. ठीक है, या लाइबिलिटीज पेड कितना? 22,000 रुपए जो आप यहाँ पर लिखोगे. ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट वाज डेटर्स ऑफ दिस मच प्रूव्ड बैड. अब प्रोविजन जैसे लिखा उसको वैसे ही रहने दो. ये जो 26,400 का इसमें से 1,000 रुपए माइनस कर दो, जो बचा हुआ मीन्स 25,400 will be written here as by बैंक अकाउंट. पैसा मिल रहा है, डेटर्स रिलीज लिख दो या फिर असेट्स रिलीज लिख दो, रियलाइज्ड. ओके, कितना? 25,400. देन व्हाट विल बी देयर? फिर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर सीता टुक ओवर लोन स्टॉक एट 20% डिस्काउंट. तो स्टॉक यहाँ पर कितना है? ये इसका 10% विल बी 300, 20% विल बी 600. तो 3,000 का माइनस 600 यू विल डू, दिस विल बी 2400. दिस 2400 has to be written here, sorry, this 2400 will be written here. सीता लेकर गई है ना, तो it will be written as by सीता's capital account. okay, ब्रैकेट में stock taken over. It should be clearly mentioned so that no marks are deducted over it. So this will be कितना? 2400 रुपए. 2400 ये हो गया. After that there were expenses, realization expenses of 1100 that were paid by the firm. तो जितने भी expenses होते हैं वो यहाँ पर आते हैं. To bank account, bracket में you will write expenses. Okay, this will be 1100. So when you will total this, the total will be of this side will be 101500. The total of obviously this side is heavier, so there will be a loss. It will be written as by capital accounts. Okay, bracket में it will be written as loss that was transferred. and जो दो लोग थे that was मीता and सीता. ओके, तो ये जो लॉस आएगा, लॉस विल बी 23700. that will be divided between them 5:8. एक मिनट, 15,800 ये और 7,900 ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? यहाँ पर द रेशियो इज दिस मच. ओके, दिस इज 2:1. ये वाला जो रेशियो इट इज देयर, इस रेशियो में द लॉस ऑफ दिस मच इज ट्रांसफर्ड. वेयर इज माय आंसर गॉन? ये वाला. ठीक है, 23700 विल बी योर फाइनल आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ in which you have to do journal entries. journal entries क्या था कि two partners are there, Beenu and Leena, जिनका ratio है 5:3, and the new ratio is this much, 3:2:2:3. They have brought, each of them has brought capitals of this much,
1 lakh each. Deepa has paid 40,000 as goodwill. Erica is unable to bring her share of goodwill, और उस टाइम पर there was advertisement suspense account that was to be written off. So it has to be written off in their old ratio and you have to do journal entries जो इस टाइम पर होंगी. तो सबसे पहली journal entry क्या होगी? वैसे accordingly the first journal entry has to be this advertisement suspense account 56,000 जो divide होगा between Binu and Erica. ओके, तो here I am writing journal entry करनी है इसमें. तो this will be written here as सबसे पहला this will be Binu's capital, क्योंकि हम लोग कुछ भी write off करते हैं तो capital accounts will be debited. Binu's capital account, then debit, और बीनू और दूसरा इंसान कौन है यहाँ पर? लीना. लीना's capital account, debit to advertisement suspense account. Okay, how much was there? It was, ये लाइन रही बीच में, yes, तो it was 56,000 ना, तो 56,000 will be divided between these two people in the ratio of old partnership, that is 5:8. So it will be 35,000 and this will be 21,000. Okay, this is the first entry. उसके बाद Deepa has brought, Deepa and Erica, these two are partners. सबसे पहले जो इनका जो रेशियो था, देखो जो न्यू ओल्ड रेशियो था between Beena and Leena was 5:3. ठीक, जो न्यू रेशियो था, who were there? Beena, then Leena, then Deepa या दीपू, पता नहीं क्या था, एंड एरिका. ठीक है, और उसके बाद द रेशियो वाज 3:2:3. तो हाउ मच दे हैव ब्रॉट? दीपा हैज ब्रॉट 40,000 इन कैश, और उसके बाद 40,000 एज गुडविल एंड 1 लाख एज कैश ऑफ द एज पार्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो बैंक अकाउंट यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट to Deepa's capital account. Okay, to Deepa's capital account, and second was to Beenu's capital. नहीं, दूसरा person कौन था? To premium for goodwill she has brought. Okay, so this is to premium for गुडविल अकाउंट. GW नहीं, पूरा उसमें लिखा जाता है. तो दिस वाज 40,000 दैट शी हैज ब्रॉट. दिस इज कैपिटल अकाउंट में दिस टोटल विल बी 1,40,000 दैट शी हैज ब्रॉट. इसके बाद आएगी दूसरे पर्सन की एंट्री, दैट इज एरिका. एरिका हैज ब्रॉट ओनली कैपिटल. तो जितना पैसा वो लेकर आई है पहले उतना लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट टू एरिकास कैपिटल अकाउंट. ओके, दिस वी हैव रिटन. कितना वो लेकर आई है? दोनों लोग लाए थे 1 लाख ईच, तो 1 लाख वी हैव रिटन हियर. आफ्टर दैट द क्वेश्चन सेज, यहां तक की दोनों की एंट्रीज हो गई. नाउ एरिका हैज नॉट ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल ब्रिंग आउट, वी विल कैलकुलेट हर गुडविल. हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? सबसे पहली चीज क्या बोली गई है कि दीपा अपना क्या गुडविल लेकर आई थी, तो पहले निकालो फर्म्स गुडविल किस अकॉर्डिंग हुई. सबसे पहले दीपा की गुडविल लो, दैट इज 40,000. उस 40,000 का दीपा का शेयर कितना हुआ? 3:2:3 मीन्स 2/10. ये 2/10 दीपा का शेयर है, तो पूरा कितना हुआ? 10/2. ये गया, दिस विल बी 2. तो दिस विल बी ओवरऑल विल बी हाउ मच? 1 लाख. This will be 2 lakh. Okay, मैथ कमजोर है मेरी.
1 2 3 4 and 0. So this will be 2 lakh will be whose goodwill? This will be firm's goodwill. अब इसी के according you will calculate Erica's goodwill जो वो ले करके आती, that will be, अब इसी 2 lakh का उसका शेयर निकाल लो, that is 3/10. तो 1010 ये गया, तो this will be 3 into 2 6 and 1 2 3 4. तो 60,000 she has to bring for the firm. ठीक है, अब ये 60,000 that she has not brought. Now first we will do the journal entry. ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि in case the partner is not bringing her share of goodwill in cash, तो her current account will be debited. Okay, तो whose current account is this? Erica's current account. Erica's current account debit, और पर्सन कौन है? प्रीमियम जो लेकर आए, दैट इज प्रीमियम. दोनों हम कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं, यू कैन राइट इट सेपरेटली ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी फाइन. और उसके बाद दोनों ये पैसा किसको मिल जाएगा? बीनूस कैपिटल अकाउंट, बीनूस कैपिटल अकाउंट एंड लीनास कैपिटल अकाउंट. ठीक है, लीनास कैपिटल account in their which ratio? In the ratio in which they are sacrificing it. अब sacrificing ratio we will calculate between who two were there? Beena and Leena. So sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. This will be 5/8. The second one will be 3/8. और उनका जो new ratio है वो कितना होगा? This is 3 minus upon 10 and it will be 3/10 and the second one will be 2 minus 10. ठीक है, तो when you will calculate this ratio, it will be 13/40, 13/20. ठीक है, वो 40 LCM लेकर के आ रहा है, तो this will be 13/40 and this will be 7/40. तो accordingly we will take it as 13:7. तो ये जितना भी रेशियो, अब देखो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेकर के आई थी? दीपा हैड ब्रॉट हाउ मच? 40,000. ओके, 40,000. एरिका हैज ब्रॉट 60,000. तो ये टोटल रेशियो कितना हो गया? द टोटल रेशियो ऑफ दिस मच इज 1 लाख. ठीक, नाउ दिस, ये जो 1 लाख है, 1 लाख का 13/20 जाएगा बीनू को, और 1 लाख का 7/20 will go to Leena's capital account. It will be written as, the total of this will be written as, यहाँ पर इनको जाएगा 65,000 और यहाँ पर इनको जाएगा 35,000. Okay, so this is the whole part of journal entry that was asked in the question. Now we will, I hope you have understood this much. If you want, I will send you a few pictures of this. ये हम आपको send कर देंगे, आप दोबारा से इसको recheck कर लेना. In case there is something that you have not written right, or is there anything that I am writing telling you wrong, you can surely mention it in the comment box. If you learn from me, I will also learn from you. It's completely fine. So now we will move towards the second part of it. That this was comparatively easy, but इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इसमें जहाँ sacrificing का part है वहां पर एक person gain भी कर रहा है. Okay, तो okay, तो this is the whole part जिसमें शायद वीडियो बीच में रुक गया होगा, तो आई एम टेलिंग इट अगेन. जहां पर when you will calculate this, so your answer will be 1 lakh. ठीक है, ये वाला 1 लाख, ये जो फर्म्स गुडविल थी, उसके बाद ये इस 1 लाख का 13 दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट वी हैव कैलकुलेटेड. इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का 13/20 and 7/20 you will do. This 65,000 will come here and 35,000 will come here. Okay, this is why I keep checking it in between. Okay, so the next question is about two partners, Rohit and Greg and Rohit, जिनका जो ratio था was this much.
और उसके बाद वी हैव टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कुणाल हैज ब्रॉट 25,000 एज दिस एंड 5,000 एज गुडविल। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या दी हुई है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे ज्यादा मेन है, वही निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, द ओल्ड रेशियो इज 2:3 बिटवीन whom, बिटवीन ग्रेग एंड रोहित। ओके, और जो न्यू रेशियो है इनका, न्यू रेशियो, हाउ मच इज द न्यू रेशियो, इट इज 5:3:2. This is 5:3:2, the new ratio. Then we will calculate the sacrificing ratio between Greg and Rohit. So how it will be calculated? First you will take 2/5 and it will be 3/5, जो मेरा old ratio था। जब आप इसका new ratio calculate करोगे तो this will be 5/10 and this will be 3/10. Okay, 3/10. So when you will calculate this, you will take the LCM as 10 and 10. ठीक है, तो multiplied by 2, this will be 4 and minus 5, multiplied by 2 again, it will be 6 and it will be 3. तो the difference between these two will be 3/10 and this will be written here. अब देखो एक चीज देखो इसमें कि इसका जो ओल्ड रेशियो है वो प्लस में जा रहा है, ओल्ड रेशियो है वो कम है, जो नया रेशियो है वो ज्यादा है, मींस ज्यादा हिस्सा वो ले रहा है, ऑलमोस्ट हाफ। तो इट विल बी रिटन हियर एज -1/10. दिस 1/10 will be written here as the thing that the person, that this partner Greg, वो क्या कर रहा है, वो इसको गेन कर रहा है, he is gaining, this is his gaining ratio। इसीलिए when you will share the goodwill will completely will given to this person, that is this is his sacrificing ratio। ये किसका sacrificing ratio है, कुणाल का, नहीं वेट सॉरी, कौन जो दूसरा पार्टनर था, that is रोहित। ठीक है, तो रोहित का ये क्या है, this is the sacrificing ratio of the other person, that is रोहित। Now we will move towards the question। The first part of it, हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। अब first thing you will do is we have to make simply a partner's capital account। तो this is the last part of partner's capital account। okay, तो सबसे पहले what you will do is, here is question number 8 का B part। We have already calculated the ratios। सबसे पहले you will write here the ratios between these two, that is by balance brought down। okay, how much, 25,000 and 10,000, that was old ratio। फिर जो पैसा कुणाल लेकर के आया है, it will be written as by bank account, how much he has also brought, ₹25,000। ठीक है, then there was a premium also that he has brought, so that premium for goodwill will be given to them। in what ratio it will be given, it will be given, अभी हम बता रहे हैं इसको। उसके बाद फिर is I am leaving one line here, और उसके बाद there is by revaluation account। अब ये revaluation account कहाँ से आया, देखो एक चीज इसमें you will notice, एक चीज इसमें यू विल नोटिस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹42,000। ऑफिस इक्विपमेंट कोई एक असेट है जो इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 5,000 का, फ्रॉम 37,000 टू 42,000, 5,000 रुपए बढ़ रहे हैं। तो इट विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 3/5। ठीक है, 2:3/5। तो हाउ इट विल बी रिटन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इट विल बी डिवाइडेड इनटू एज 2:1:3:1:2:5 between old partners and 1:8:7:5। then will be a general reserve that you have seen, there is it is mentioned in the part of balance sheet। okay, here it is mentioned as general reserve। तो ये general reserve है 8,000 का। again this will also be divided between these two partners in their
old profit sharing ratio, that will be 5000 and 3000. ठीक. आफ्टर दैट इज ग्रेग्स. अब देखो, अब एक और जर्नल एंट्री आती है, मेरी एंट्री ऑफ गुडविल. फर्स्ट आई विल राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल हेयर, दैट इज टू गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुडविल रिटन ऑफ. तो उसमें जो मेरी ओल्ड गुडविल है, दैट विल बी रिटन ऑफ एज 6250 एंड 3750. इसको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. फिर आता है मेरी एक और एंट्री यहाँ पर, जहां पर आप जर्नल एंट्री करते हो. यू नो कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंसान जो प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके, डेबिट टू जो पर्सन को गेन हो, जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहा है. लेकिन जब हम लोग ने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन किया तो हमें ये पता चला दैट देयर इज ओनली वन पर्सन, रोहित, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, और उसका रेशियो कितना है, 3/10 का उसका रेशियो है. ठीक है. देन कम देयर इज वन मोर पर्सन. यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पर देयर इज वन मोर पर्सन, ग्रेग. अब ग्रेग इज गेनिंग, हाउ मच ही इज गेनिंग, 1/10 ही इज गेनिंग. ठीक है. जो गुडविल है फर्म, जो गुडविल कुणाल लेकर आया है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 5000. ठीक है. अब देखो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, व्हाट विल बी डन मीन्स, यहीं पर ही बता दे रहे हैं. देखो गुडविल कितनी है, 5000 दैट ही हैज ब्रॉट, दैट कुणाल हैज ब्रॉट. और कुणाल का, लेट मी सी द क्वेश्चन पेपर, कुणाल का द न्यू रेशियो बिटवीन दीज टू, मिलेगा भी नहीं अभी. कुणाल has brought the new ratio between the three partners is how much? It is 5:2:5:3:2, मतलब 2/10. किसका रेशियो है, कुणाल का. ठीक है. तो इसी के ही बेसिस पे व्हाट विल बी डन इज, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द ओल्ड रेशियो बिटवीन, वी विल कैलकुलेट द रेशियो अमंग द पार्टनर्स. ये रहा. ओके. तो हाउ इट विल बी डन, कुणाल कैपिटल गुडविल कितनी थी, 5000 विल बी टेकन मल्टीप्लाइड बाय 2/10 था, तो दिस विल बी एज 10/2. ठीक है. कैलकुलेट दिस, इट विल बी डन एज 50 एंड 25 इट विल बी. तो 25,000 विल बी द होल ऑफ फर्म्स गुडविल. इस फर्म की गुडविल का सबसे पहली चीज 3/10 हैज टू बी गिवन टू हिम. ठीक है. 3/10 हैज टू बी गिवन टू हिम. और ये इसको कितना, तो उस अकॉर्डिंग, फर्म्स की गुडविल के अकॉर्डिंग, व्हाट अमाउंट विल बी गिवन बाय दिस पर्सन, ग्रेग. देखो ग्रेग का सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो इतना था, रोहित का सैक्रिफाइसिंग इतना था. ओके. और इसका भी सैक्रिफाइसिंग कितना था, 2/10, जो जिस रेशियो में वो लेकर आया है. तो इसी का ही यू विल डू 1/10. और ये 1/10 means 2500 रुपए. This 2500 will be given by Greg. So it will be written here as Greg's capital account 2500, और रोहित का capital account will be with this 5000 plus 2500, that is 7500. ठीक है. तो this total, how it will be written, the 5000 that is come from Kunal, 5000 ये, then here by Greg's capital account, जिसको हम लोग इधर डेबिट भी करेंगे, that is 2500. and here you will write here as by रोहित कैपिटल अकाउंट, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं. ओके. और अमाउंट माइनस करोगे किसमें से, 2500 इसमें से. देन next general reserve we have done, revaluation we have done. So the total of this side will be 33125 and it will be 22375. और इसका it will be 25,000. Here also 2 balance carried down. ठीक है. इसका Kunal's will be 25,000 here also, and here also it will be 25,000 only.
Then the balance of this side will be 24375 and 18625, and the final will be here as 33125 idhar wala hi, and here also it will be 22375. Okay, I hope you have understood this much. कुछ भी ऐसा इसमें जो नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. This part is complete. Tell me if you require more of such questions. नहीं तो जो जितने मेन चीजें मेन questions है that we have done. Okay, tell me if something is there that you have not understood. I will send you this solution also on the part of Telegram. You can see the part from there. Keep preparing for your further exams, whichever is left. Just be your best. Okay, thank you.